Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB, as shown in figure. The bead is at rest with respect to the circular ring at position P as shown. Then the value of omega square is equals to. So these are our four options. We have to find the correct value of omega square. So this is our bead which is at fixed point P, and this circular ring is rotated about AB. So we can say this circular bead will also rotate about this circle which has radius r by 2. So students, we know that on this bead there is one force acting downwards that is equals to mg. So this is mg. And also if this bead is rotating in a circle about axis AB, so we can say that there is one centripetal force also that is outwards, and that has the value of m omega square into radius of circle is r by 2. So m omega square r by 2. So this is our centripetal force and this is mg. Now students, if this bead is at rest at position P, so we can say there is one normal reaction also. So our normal reaction will be in this direction. This is our normal reaction N. Now if we assume this angle theta, now we have to first find the theta. So for finding the theta we have to go towards the triangle OCP. So in triangle OCP, this is our OC side, this is our CP side, and this is OP side. So this is OP and this is C. This distance is given to us, that is r by 2, and this given to us, that is r. And in the figure the theta is this. So in this triangle we can write the value of sine theta, that is equals to perpendicular upon hypotenuse, and we know the perpendicular is this side and hypotenuse is this side OP. So perpendicular is r by 2 and hypotenuse is r. So from here we can see that our theta comes out to be 30 degree. So here we get the value of theta that indicates in the figure. Now we have to do the two components of normal reaction for balancing the forces. One component is this and another component is this. This is our n cos theta and this is our n sin theta. Now we have to apply the condition of equilibrium. So condition of equilibrium in horizontal and vertical direction. So if we apply first for horizontal direction, that is n sin theta is equals to m omega square r by 2. This is our first equation. This is n cos theta is equals to mg. This is our second equation. Now on dividing first and second equation, we get tan theta is equals to omega square r by 2g, and also the value of theta is known to us, that is 30 degree. So we can put the value. So tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3 is equals to omega square r by 2g. So from here the value of omega square comes out to be 2g divided by root 3 r. So this is the value of our omega square. So from here our correct option comes out to be option C, 2g divided by r root 3. This is our correct option. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन वायर विच पासेस थ्रू द होल इन अ स्मॉल बीड इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के क्वार्टर के फॉर्म में बेंड है, ये यहाँ पे दिखाया गया ये भी। द वायर इज फिक्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन द फिगर। तो वर्टिकल है यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो स्लोप अगर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट बी पर तो वो वर्टिकल बनेगी। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जब।
तो द बीड इज रिलीज फ्रॉम द नियर द टॉप ऑफ द वायर एंड स्लाइड्स अलोंग द वायर विदाउट फ्रिक्शन एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर इज। तो बीड को जब यहाँ से छोड़ेंगे, ये स्मॉल बीड है, ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें नॉर्मल डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, मतलब कि जो फोर्स अप्लाइड है वो कैसे चेंज हो रही है। तो बीड जो अप्लाई करेगी फोर्स, वो कौन सा फोर्स होगी, जिस पर नॉर्मल डायरेक्शन होगी, ठीक है, बीड पर, तो वो बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो इस पर नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई हो रही होगी वही इस पर, ये वायर पर अप्लाई कर रही होगी बीड, ठीक है, फोर्स। तो बीड के बारे में जब बात करेंगे तो ये हमारे पास बीड है, इसका क्या है, इसका मास mg है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक डायरेक्शन होगी जो नॉर्मल के अलॉन्ग होगी और एक होगी जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये कितना है, 90 डिग्री। तो नॉर्मल के अलॉन्ग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अब देखिए इसके ऊपर, क्योंकि ये बीड है, इसका मास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इस पर अपवर्ड लग रही होगी, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लग रही होगी इस पर, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg का, वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसके साथ किसी एंगल पर, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ जो है वो थीटा है, ठीक है। तो वर्टिकल के साथ वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल यहाँ पर है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल mg cos थीटा, ये वाला एंगल mg sin थीटा, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है, n माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी अभी इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग, तो वो इसको नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो n माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी n माइनस mg नहीं, n माइनस mg अगर लिखेंगे तो ये इसका मतलब क्या है कि ये आउटवर्ड हम लोग लिख रहे हैं नेट फोर्स इस पर, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r, जिस आर में मूव कर रहा है जिस रेडियस में, इसकी रेडियस की लेंथ r है, ठीक है। तो ये किसके अलोंग द नॉर्मल, हमने इसके फोर्स को बैलेंस कर लिया है, mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई इसकी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स आ रहा है इस पर, वो किस तरफ आ रहा है, mg sin थीटा के अलोंग। तो बेसिकली इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व करा देते हैं इसकी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये कुछ किसी एंगल थीटा पर होगा तो क्या हो जाएगा, कितनी हाइट गिर चुका होगा, ये इतनी हाइट गिर चुका होगा, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू r बोल देते हैं। तो mg r माइनस आर कॉस थीटा, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ये किसके इक्वल होगा, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी इनिशियली, तो हाफ m v स्क्वायर के, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2gr 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस वाली v की वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स m अपॉन r टाइम्स 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स ट्वाइस mg माइनस ट्वाइस mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स थ्राइस mg cos थीटा माइनस 2mg, ओके। तो n की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से mg 3 cos थीटा माइनस 2। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वायर इज, तो बीड जो अप्लाई कर रही है फोर्स वो कितना होगा, n, क्योंकि वायर इस पे बीड पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर, तो बीड भी इस पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी n के इक्वल, ठीक है। तो और n की डायरेक्शन कैसी होगी वो देख लेते हैं हम लोग। ये जब 3 cos थीटा माइनस 2 ये कर रहा है इसकी डायरेक्शन चेंज, मतलब इसकी साइन चेंज कर रहा है n की वैल्यू का, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या होगा, n पॉजिटिव होगा
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बीड पे ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा और इस पे ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। और जब ये वैल्यू 3 cos थीटा माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे बीड पे फोर्स इनसाइड लग रहा होगा, मतलब टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा ये वाला फोर्स, और इस पे ये फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा जब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, और ये कब हो जाएगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिख देना चाहिए, ग्रेटर देन 2/3, और ये कब हो जाएगा जब cos थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 करना है, इसका मतलब क्या है थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, cos इनवर्स 2/3 से। और यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू कम करनी है और हमें पता है cos थीटा कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री में, तो डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, cos इनवर्स 2/3 से, और इस वाले केस के लिए थीटा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए cos इनवर्स 2/3 से, ओके। cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos इनवर्स 2/3 की वैल्यू होती है 48.18 डिग्री, ठीक है। तो जब थीटा की वैल्यू बड़ी होगी 48.18 डिग्री से, तो n मतलब नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट्स ऑन, जो मेरे पास वायर है, वायर कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 48.18 डिग्री से, इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी 2/3 से, इसका मतलब n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, n की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या है कि इस पे n आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग एक्ट करेगा, एक्ट्स अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी 48.18 डिग्री से, तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2/3 से, n के लिए पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब इस पे कैसे एक्ट करेगा, n एक्ट्स ऑन वायर, कैसे, एक्ट्स अलोंग द सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, या फिर एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, अलोंग नहीं लिखना चाहिए, टुवर्ड्स लिखना चाहिए यहाँ पर, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है विदाउट डैम्पिंग के, ठीक है ना। बोल रहा है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम इस एक्सेलरेशन वेक्टर इज करेक्टली शोइंग, कैसा एक्सेलरेशन इसका वेक्टर होगा। तो चलिए कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पे है बॉब है, ठीक है ना, एक यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना, ये थीटा एंगल पे यहाँ बना रही है, ठीक है। अब यहाँ जो है एक्सेलरेशन वेक्टर जो है, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ठीक है। एक एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, इस पे एक एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंटियल लगेगा और एक लगेगा एक्सेलरेशन वेक्टर रेडिकल। एक्सेलरेशन रेडिकल वेक्टर ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन रेडिकल होगा, क्योंकि ये जो है ना इसके सेंटर की ओर लग रही है, और ये एक्सेलरेशन टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होगा, और इसका जो है ना ये पूरा मतलब कि रिजल्टेंट होगा, जो कि बोल सकते हैं ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर देखें ए नंबर में, तो ये तो एक्सेलरेशन रेडिकल वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्सेलरेशन टेंजेंटियल हो गया, ये तो डायरेक्ट ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में ए का डायरेक्शन है। सो अगर हम अपना सी नंबर देखें, तो सी नंबर हमारा एक्सेलरेशन रिजल्टेंट हो जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन टेंजेंटियल और एक्सेलरेशन रेडिकल का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो हमारा सी नंबर जो है राइट आंसर है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए स्टोन है इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इज व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विथ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर, ठीक है। एंड एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन एंड हैज ए स्पीड यू, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो एक एंड पे अटैच्ड है विद द स्ट्रिंग, एंड एक
एक स्ट्रिंग हमारा क्या है, स्टोन टाइड है एट वन एंड ऑफ द, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जी बीइंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूछ रहा है कि जब ये इनिशियल पोजीशन मतलब वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि ये मान लेते हैं हमारा सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा स्टोन है, ठीक है। इसके अबाउट ये फिक्स्ड है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसके पास वेलोसिटी u है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी किधर, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मान लेते हैं v। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं अगर ये दो वेक्टर हैं, u हमारा इधर है और एक v वेक्टर इधर है, ठीक है, जो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, जब ये हाईएस्ट मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा तो इस समय इसके बीच में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें निकालना है चेंज इन वेक्टर मतलब v माइनस यू वेक्टर का मोड निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे u दे दिया है, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं कि ये स्ट्रिंग ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का हमें लेंथ दिया है l, ठीक है। अब ये जैसे ही इस पॉइंट पे होगा तो हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं किसी, ये थीटा एंगल है, ठीक है, और ये मास हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, ठीक है। और ये टेंशन t लगेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये हमें लेंथ एल दी दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है थीटा जब इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस समय हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तो जो यहाँ पे एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन मतलब जो यहाँ पे एनर्जी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा इतना एनर्जी लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, केवल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे क्या है, इसके पास एक, इसको इस पॉइंट को अगर हम इस लाइन को रेफरेंस मानते हैं तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी k प्लस यू होता है, ठीक है। तो हम पहले मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल निकालते हैं। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है u, मतलब ये यहाँ पे u दिया है, ठीक है। हम उसका मास मान लेते हैं m है, ठीक है। तो हमें एट लोवेस्ट पॉइंट पर हमें वेलोसिटी दिया है u, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल में क्या होगा कि जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये कितना ऊपर गया है मतलब mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास। तो यहाँ से क्या होता है, ये k प्लस यू होता है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास मान लेते हैं, उसके पास वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम जी इंटू एल, ये उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा तो इट इम्प्लाइज, यहाँ से हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इट इम्प्लाइज क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl, ठीक है। तो यहाँ से v आ गया हमारा, वी स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, अब हमें निकालना था कि हमें मोड ऑफ v माइनस यू निकालना था। तो हमें यहाँ से देख लिए हैं कि वेलोसिटी v वेक्टर एंड u वेक्टर के बीच में कितने डिग्री बन रहा है, तो हमने पहले ही बता दिया कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया है। तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका दो वेक्टर का यहाँ से यहाँ पे एंगल हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, अब v स्क्वायर हम यहाँ निकाल चुके हैं, v स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखे हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है। तो अब यहाँ से हमें यही चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी वेक्टर कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट अंडर 2u स्क्वायर माइनस 2gl। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस gl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हो गया, यही हमसे पूछा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration ac is varying with time as ac is equals to k square rt square। ठीक है, where k is constant। है ना, we have to find out the power delivered to the particle by the forces acting on it, right। तो हमें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो गिवन है ना। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वैसे होता क्या है, ac is equals to v square by r होता है, राइट। तो हमें भी v square by r की वैल्यू कितनी गिवन है, k square r t square। है ना, यहाँ से हमारा v square कितना आ गया, v square is equals to k square r square टी स्क्वायर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें पावर डिलीवर्ड निकालनी है। तो पावर डिलीवर्ड हमारी होती है क्या, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी बाई डी टी। है ना, ये हमारी पावर डिलीवर्ड होती है। तो इस केस के अंदर जो हमारी एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी आ गई, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। है ना, वी स्क्वायर हमें पता ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ एम इंटू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारी जो पावर डिलीवर्ड है वो क्या होगी, डी के बाई डी टी। है ना, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारी पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेस होगी। है ना, ये हमारी कितनी जाती है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है ना, हाफ एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। है ना, तो इस 2 से ये 2 गया, तो ये हमारा कितना बन गया, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट विल बी एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ठीक है, हेलो फ्रेंड, एक सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स। क्या है, एफ है जो कांस्टेंट है, ठीक, एफ है जो कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का भी चीज है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन ए प्लेन, इट फॉलो दैट, मतलब कि एक इस तरह वेलोसिटी है पार्टिकल का, इसके परपेंडिकुलर है जो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक, जो कि कांस्टेंट है, एफ है जो कांस्टेंट लग रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट्स वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, गलत हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स लग रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर हो जाएगा और फोर्स है जो इसके परपेंडिकुलर कांस्टेंटली ये होगा, इस तरह, इधर वेलोसिटी इधर फोर्स। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इस तरह यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन बोल रहा है कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि टुवर्ड द सेंटर होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया।
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ए कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो स्पीड होता है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये भी सही है। इट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ये क्या बोल रहा है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसके बारे में तो नहीं बता सकते कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये फोर्स, तो नहीं ये ऐसा थोड़े थे कि ये होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये तो भी नहीं है। तो मेरा स्टेटमेंट ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक, थैंक यू। सो इस क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉब जिसका मास m है वो सस्पेंडेड है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ L1 है, ठीक है, और उसको मिनिमम वेलोसिटी दी गई है जिससे कि वो एक कंप्लीट जो है फुल सर्कल जो है कंप्लीट कर पाए, एक पूरा जो है रोटेशन कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से ये L1 लेंथ है और यहाँ पर बॉब है, इसको इतनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि ये एक जो है चक्कर यहाँ से पूरा कर सके वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है, वर्टिकल है। तो बोल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर बॉब, एक दूसरा बॉब है जिसका मास जो है सेम है, मतलब दोनों बॉब का मास क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों का m मास है। तो ये इससे कोलाइड कर रहा है और इसकी लेंथ स्ट्रिंग की क्या है, L2 है, जो कि इनिशियली पहले क्या था, रेस्ट पे था। मतलब इसकी जो सर्कल है उसी सर्कल के ये रेडियस पे आता है ये, और यहाँ पर ये कोलाइड कर रहा है एकदम वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। सो बोल रहा है बोथ द स्ट्रिंग आर मासलेस एंड inextensible. So बोल रहा है if the second bob after collision acquire the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane then the ratio of L1 and L2 is, मतलब बोल रहा है कि टकराने के बाद ऐसा हो रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होती है L1, मतलब ये फर्स्ट बॉब की, अगर इसको बॉब A हम बोल दें लेट से और इसको B बोल दें, तो A बॉब जब इससे टकरा रहा है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इसका क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट है ये बॉब का, तो यहाँ से टकराने के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर रहा है इलास्टिकली जब कोलिजन हो रहा है, तो कि ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रहा है। अगर ये कर रहा है इस तरह से एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर पा रहा है, तो दोनों का जो लेंथ है बॉब का स्ट्रिंग का लेंथ है उसकी रेशियो बताना है हमें क्या है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि कोई भी बॉब को अगर कोई भी सर्कल है उसका लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी उसको दी जाती है उसका एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होती है, वी मिनिमम जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यू भी बोल सकते हैं, ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ होती है 5 इंटू जी इंटू एल के, 5GH के। अब क्योंकि यहाँ h की बात करें तो क्या है, यहाँ पर L1 है लेंथ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5G L1 के, ओके। सो ये हो गई हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर माइनस 2GH के, ठीक है। सो ये हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, ये तो लोवेस्ट पॉइंट था, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट बॉब के लिए हम बात करें, ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2GH के। हाईएस्ट पॉइंट पर देखें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 ये लेंथ है और L1 ये, इस लोवेस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 2L हो जाएगी लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो u की वैल्यू हमारे पास रूट 5GL है, तो हो जाएगी 5GL1 माइनस हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2L, तो 2L1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 2 4 GL1 और 5GL1 कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ GL1, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फर्स्ट बॉब, जो बॉब ए की वेलोसिटी है, ठीक है, ए की जो वेलोसिटी हो कितना हो गई, रूट 5GL। अब जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिकली दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, कोलिजन का इलास्टिक कोलिजन जब होता है और दो आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं तो इसमें दोनों की स्पीड जो है एक्सचेंज हो जाती है, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इसमें कोलाइड कर रहा है तो जो बी बॉब है उसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, जितना कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉब ए की वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब बॉब बी की जो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, सेकेंड स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बी बॉब के लिए। सो वेलोसिटी ऑफ बी बॉब हम लिख सकते हैं एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी होगी, कितनी इसको मिलेगी, रूट GL1 के।
ठीक है, रूट जी L1 ये वेलोसिटी होगी इसकी। ओके, तो इस वेलोसिटी के साथ ही जो है एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, रूट 5GL। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो हमने यहाँ पर लिखा था कि इसकी वेलोसिटी मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर किसी भी बॉब की वेलोसिटी क्या होती है वर्टिकल प्लेन में, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5GL, और इसकी लेंथ L थी तो L1 हो गया था। लेकिन इसकी भी अगर देखें तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसकी लेंथ कम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5G और हो जाएगा L2। ये तो इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इसका एक चक्कर जो है कंप्लीट करने में वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। लेकिन इसको मिल कितनी रही है वेलोसिटी, इसको मिल रही है रूट 5GL2 जो है ये इक्वल हो रहा है रूट GL के, GL1 के, क्योंकि ये GL1 वेलोसिटी जब इसको मिल रही है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है L1 की, तो जब इसको ट्रांसफ़र हो रही है L2 को, तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है चक्कर, एक जो है सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट GL1 जो है रूट 5GL2 के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि जो रूट 5GL2 है लोवेस्ट पॉइंट पर जिसके सेकंड बॉब की वेलोसिटी है या होनी चाहिए, जो एक कंप्लीट करने के लिए जो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी वेलोसिटी है वो क्या है, 5GL2, और उसको मिल रही है फर्स्ट वाले बॉब से कितनी मिल रही है, GL1। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों वेलोसिटी इक्वल है। सो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेट करें इसको तो यहाँ से आ जाएगा L1 ओवर L2, अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा इक्वल। ओके, और यही हमसे पूछा गया था कि दोनों के लेंथ का रेशियो क्या होगा। तुम देख सकते हैं दोनों के लेंथ का जो रेशियो है वो कितना है, L1 ओवर L2, तो ये है 5:1 का। मतलब अगर मीटर की बात करें, लेट्स से कि 5 मीटर है, L1 की अगर लेंथ 5 मीटर है तो L2 की क्या है, 1 मीटर होगी। ओके, सो ये होगा हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्पेस between two fixed concentric spheres A and B. ठीक है, the smaller sphere A has a radius r and the space between the two spheres has a width d. The ball has a diameter very slightly less than small d. All the surfaces are frictionless. The ball is given a gentle push towards the right. The angle made by the radius vector of the ball with the upward vertical is denoted by theta. ठीक है, और उसके बाद दिया गया कि एक्सप्रेस द टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आई होप आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि ये दो स्फीयर हैं, ये स्पेस डी है दोनों के बीच का, रेडियस अंदर वाले स्फीयर की आर है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये बॉल रखी हुई है, इसको हल्का सा पुश किया तो इसने यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन किया। किसी भी एंगल थीटा पे आपको बताना है कि इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसको थीटा की टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट पे फोर्सेस का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ लग रहा होगा भाई mg, ठीक है, और यहाँ लग रहा होगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा हो गया। ये नॉर्मल मान लेता हूँ मैं na लग रहा है। ठीक है, करेक्ट। अब देखो जो ये फोर्स हो गया इसका mg sin थीटा ना, mg cos थीटा है। ठीक है, और ये na है, ये दोनों ही इसको क्या दे रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे होंगे इसको इस रेडियस के या इस आर्क के सर्कल में सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि mg cos थीटा माइनस na होगा जो वो किसके बराबर होगा, m v स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, v क्या है, इसकी स्पीड इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है, और r क्या है, r हो गया आपका रेडियस। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस है d। ठीक है, यहां से, और अगर मैं बात करूं कि यहां तक की, ठीक है, तो ये कितने हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, r प्लस d/2, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, d है। ठीक है, तो ये आधे पे मान रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि थोड़ा सा छोटा है d से, बस। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब बस कि फ्रिक्शनलेसली उस पे घूम सकता है, इस पूरे के पूरे जो स्पेस है उसके अंदर जो खाली जगह है उसमें घूम पाए, इसलिए थोड़ा सा छोटा बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब r/2 हो गई इसकी, सॉरी d/2 हो गई, अगर इस पूरी डायमीटर d है तो हो गया r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर अपॉन r, तो r प्लस d/2 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी स्पीड थी 0, यहाँ पे हो गई इसकी स्पीड कितनी, v। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल इनिशियल एनर्जी जो होगी वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं सिस्टम में, ये अपने खुद की जो
इंटरनल फोर्सेज है उनकी वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे स्पीड 0 है, ठीक है, तो 0 हो गई, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी mg(r+d/2), ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूँ तो इसकी हाइट कितनी हो गई सेंटर से, r तो यहाँ तक हो गई रेडियस, ठीक है, और d/2 इस बॉल का रेडियस, तो r+d/2, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास की इस बॉल के जो टोटल हाइट हो गई इससे r+d/2। फाइनल एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की होगी 12 mv², क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है v जो इसकी है इस पॉइंट पे स्पीड है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो अभी क्या आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, कितना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया। तो अब मुझे इसकी हाइट ये लिखनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगी mg(r+d/2 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, r+d/2 है, और इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा r+d/2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं v²/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, g(r+d/2 1 माइनस cos थीटा के। तो यहाँ से v² की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 टाइम्स g(r+d/2 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकता हूँ, mg cos थीटा माइनस na जो होगा वो किसके बराबर होगा, m(2g(r+d/2 1 माइनस cos थीटा अपॉन r+d/2, ठीक है। तो यहाँ से na की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ मैं। na की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, na की वैल्यू देखो r+d/2 से r+d/2 कैंसिल आउट हो गया, तो na की वैल्यू आ गई टोटल mg cos थीटा, ठीक है, प्लस mg cos थीटा हो गई, सॉरी माइनस आ जाएगा, n इस साइड लेके आ रहे हैं, n को इस साइड ला रहे हैं और इस टर्म्स को इस साइड ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स 2mg 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ठीक है। तो na की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा 2mg और ये 2mg cos थीटा, हो जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg, यानी कि लिख सकता हूँ na की वैल्यू mg कॉमन आ जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है। cos थीटा की टर्म्स में आ गया na की वैल्यू, थीटा की टर्म्स में फाइंड करनी थी तो ये आ गया नॉर्मल। अब बी ऑप्शन में आपको गिवन है कि लेट na and nb denote the magnitudes of the normal reaction forces on the ball exerted by the sphere A and sphere B respectively. So sketch the variation of na and nb as function of cos theta in the range theta is greater than equal to 0 and less than equal to pi by drawing two separate graphs in your answer book taking cos theta on the horizontal axis, ठीक है। अब आपको cos theta के साथ में na और nb यानी कि ये वाला स्फीयर जो स्फीयर 1 है इस पे जो फोर्स लगा रहा है बॉल पे नॉर्मल, और स्फीयर 2 जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उनका वेरिएशन दिखाना है आपको। अब देखो na की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि na का ग्राफ बनाना है मुझे cos थीटा के साथ में, तो इसका मतलब na का वेरिएशन देखना पड़ेगा थीटा के साथ में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम पे जब बॉल कांटेक्ट लूज करेगी इस वाले स्फीयर के साथ में, ठीक है, जब कांटेक्ट लूज करेगी, मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ क्लियरली। लेट्स से कि किसी टाइम पे बॉल क्या होगी, किसी एंगल पे जाके यहाँ से कांटेक्ट लूज कर देगी इस वाले स्फीयर के साथ में और इस वाले स्फीयर पे टकरा जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मल एनवी लग रहा होगा, ठीक है। तो जिस एंगल पे कांटेक्ट लूज होगा वो एंगल क्या होगा, उस एंगल पे na विल बिकम 0 व्हेन बॉल लूजेस कॉन्टैक्ट विद स्मॉल स्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम पे na विल बिकम 0, na 0 हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स 2/3। इस एंगल पे जो अपना na है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इस एंगल पे बॉल अपना कांटेक्ट लूज कर देगी छोटे वाले स्फीयर के साथ में। तो किसके साथ में पकड़ लेगी, बड़े वाले स्फीयर के साथ में पकड़ लेगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह है, ठीक है, इस तरह से है आपका, ठीक है। अगर ये इससे कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ठीक है, अगर जैसे ही किसी एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगी तो इससे कांटेक्ट में हो जाएगी, बस थोड़ा सा स्पेस है उनके बीच में, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। अब जैसे ही ये बॉल यहाँ पे इससे कांटेक्ट लूज करके और इधर मान लो कांटेक्ट बनाती है,
ठीक है। लेट से कि इसी पॉइंट पे बॉल जस्ट कांटेक्ट लूज करती है और बी स्फीयर से टच में आ जाती है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। थीटा एंगल पे ही बॉल क्या करती है, इससे जस्ट इस पहले वाले स्फीयर से कांटेक्ट लूज करती है और दूसरे वाले के कांटेक्ट में आ जाती है। तो देखो अब क्या होगा, नॉर्मल लगेगा इधर, ठीक है, और मैं फोर्सेस एक बार दिखा देता हूँ आपको और फिर एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। mg यहाँ लग रहा होगा तो mg cos थीटा भी इधर लगेगा, ठीक है, और ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे होंगे, ठीक है, यानी कि n प्लस nb प्लस mg cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r प्लस d/2 के, ठीक है, mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ, अगर इसी पॉइंट पे ये काम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखो पहले क्या हो रहा था, पहले mg cos थीटा इधर लग रहा था लेकिन नॉर्मल ऊपर लग रहा था, यानी कि पहले नॉर्मल की जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, अभी नॉर्मल क्या हो गया, इधर हो गया। बाकी सारे फोर्सेस एज इट इज है, सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही है, रेडियस उतनी है, स्पीड उतनी है उसी पॉइंट पे, ठीक है, मास उतना ही है बॉल का, बस क्या चेंज हुआ है, नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हुई। पहले जो यहाँ लग रहा था वो अभी यहाँ लगने लगेगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल की डायरेक्ट वैल्यू चेंज करके लिख सकता हूँ, ठीक है, बस माइनस साइन के साथ में, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन ही तो चेंज हुई, बाकी सारी प्रॉपर्टीज, बाकी सारी जो क्वांटिटीज है एज इट इज रखी हुई हैं। अब मैं रादर देन मैं ये करूँ कि पहले यहाँ पे फोर्सेस लिखूँ, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ, फिर एनबी का फंक्शन निकालूँ, फिर वहाँ से वॉल्यूज पुट करूँ, ठीक है, फिर एनबी को 0 करूँ तो वहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिले, उससे बेटर है कि मैं डायरेक्ट डायग्राम से ये समझ सकता हूँ कि एन ए जो है वो क्या है, अपोजिट टू एनबी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट है, ठीक है। जब ओपोजिट है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एनबी जो है वो माइनस ऑफ एन ए है, बाकी सारी क्वांटिटीज तो एज इट है, तो एनबी बन जाएगा आपका माइनस mg 3 cos थीटा माइनस 2, ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ mg 2 माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, mg 2 माइनस 3 cos थीटा, ये हो गई मेरी एनबी की वैल्यू, ठीक है। अब एनबी कहाँ पे 0 होगा, जब एनबी से भी कांटेक्ट टूट जाए, एनबी 0 हो जाएगा आपका, एनबी विल बिकम 0 एट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है, यानी कि ये भी इसी एंगल पे 0 बन रहा है जिस एंगल पे वो बन रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो लेट से ये यहाँ पे इस साइड में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और ये हो गया मेरा, ठीक है, ये एक्सिस हो गई मेरी एन ए और यहाँ हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर मैं एन ए का एक्सप्रेशन पहले यहाँ लिख लेता हूँ, एन ए जो है वो क्या है, mg 3 cos थीटा माइनस 2, यही है, ठीक है, यानी कि cos थीटा एन ए कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू जैसी 1 हो जाएगी तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी, यानी कि जब cos थीटा मैक्सिमम करता हूं मैं, ठीक है, व्हेन cos थीटा जो है वो क्या है 1 है, तो एन ए कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, यहाँ 1 रख के देखो mg आ जाएगा, तो ये बन जाएगा mg, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 1 रख देता हूँ मैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे, लेट से ये 1 है, ठीक है, ये 1 पे इसकी एन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, mg है, ठीक है, mg है। अब जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते हो, ठीक है, तो एन ए क्या होता है, कम होने लगता है। थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है, एन ए कम होने लगता है। जैसे मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो cos थीटा कम होगा, cos थीटा कम होगा तो एन ए कम होगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरह की, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू जैसे ही मैं 2/3 रख दूंगा एन ए हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 2/3 पे ये क्या हो जाएगा, एन ए 0 हो जाएगा, ठीक है, तो एन ए का ग्राफ आ गया। और अगर मुझे सिमिलरली एन बी का ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो एन बी का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, सिमिलर केसेस बनेंगे, सिमिलर चीजें होंगी, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे मेरा है एन बी और यहाँ पे मेरे पास है cos थीटा, ठीक है। तो एन बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है mg
2 माइनस 3 कॉस थीटा। अब ठीक है, अब देखो एन बी कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 जैसे ही मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5 mg। ठीक है, ये तो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी। ठीक है, अब अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं एन बी की, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। जैसे ही कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 होते के साथ ये -mg हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि नेगेटिव में होगा नहीं, नॉर्मल 0 हो सकता है, 0 पे कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, या फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 हो सकता है। एन बी 0 कहाँ होगा, एन बी इज 0 एट थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो कॉस थीटा -1 पे एन बी की वैल्यू होगी मैक्सिमम, कितनी होगी, 5 mg होगी। तो देखो जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करते तो एन बी हो जाएगा 2 mg, यानी कि एन बी हो जाएगा 2 mg। ठीक है, तो ये यहाँ से इंटरसेप्ट करते हुए जाएगी लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया एन ए और एन बी का फाइनल ग्राफ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल है जो सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम पॉइंट ओ, और वो है एक मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है जिसकी लेंथ है एल। एक वर्टिकल लाइन ए बी है जो है एट डिस्टेंस ऑफ एल बाई 8। यहाँ ए बी है एक लाइन, तो उसको हम लोग एक वेलोसिटी यू देते हैं। एट सम पॉइंट उसका जो मोशन है वो सीज हो जाता है सर्कुलर, और इवेंचुअली ऑब्जेक्ट जो है वो पास करता है थ्रू द लाइन ए बी, यानी इस वर्टिकल लाइन के अक्रॉस अलॉन्ग आता है। तो हमें देखा एट द इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग ए बी इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग पहले इस मोशन को एनालाइज करते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये ऐसे रोटेट करके जाता है डी पॉइंट तक। डी पॉइंट पे ये स्लैग हो जाती है स्ट्रिंग, तो ये यहाँ से आगे एक पैराबोलिक मोशन करता है, और यहाँ पे पैराबोलिक मोशन करके ये वर्टिकली नीचे फॉल कर जाता है। तो हम लोग इसमें पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखते हैं पहले कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी डी पे, जो वी है वो क्या होगी। तो देगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो हो जाएगा एम जी एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर ये यहाँ पे स्लैग कर रहा है, यानी अगर हम लोग टेंशन यहाँ पे टी ले लें, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये स्लैग अगर करेगा तो जो फोर्सेस होंगे बैलेंस होंगे। ये जाएगा एम जी, यहाँ पे एम जी है, साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। ये स्लैकिंग की कंडीशन है, तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आती है वो आ जाती है इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल। नेक्स्ट हम लोग पैराबोलिक मोशन एनालाइज करते हैं इसका। तो हम लोग पहले डी एफ की लेंथ निकालते हैं। जो डी एफ है वो हो जाएगा एल कॉस थीटा माइनस एल बाई 8, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस जो है, या ये वाली जो डिस्टेंस है ये है एल बाई 8, और ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ द रेंज ऑफ पैराबोलिक पाथ, हाफ इंटू ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा। ये वी स्क्वायर बाई 2g होता है, इसको साइन 2 थीटा बाई g होता है ये। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं एल इंटू कॉस थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम लोग को पता है कि जो वी स्क्वायर बाई जी एल है, यानी ये वी स्क्वायर बाई जी एल है, ये है साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो जो कॉस थीटा रहेगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1/2। सो थीटा ये हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा, और हमें गिवन है कि द पार्टिकल इज गिवन है वेलोसिटी यू। तो यहाँ पे तो हम लोग बता सकते हैं कि जो v हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एल साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने प्रीवियसली निकाल लिया था यहाँ पे कि ये 60 डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 जी एल। सो
हम लोग को वेलोसिटी आ गई, तो हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये वाली जो इक्वेशन थी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो u स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 जी एल प्लस जी एल साइन थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू जी एल। सो जो वेलोसिटी आ जाएगी यानी u वो हो जाएगी अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू जी एल। यहाँ पे एक एरर था, यहाँ पे हमारा 2gl रहेगा, सो ये यहाँ पे एरर रहेगा ये। सो हम लोगों को दे रखा है कि ये u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2gl। सो ये हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ पे। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू जो वी स्क्वायर है हमारा, वी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा इंटू जी एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2 जी एल प्लस 2gl प्लस 2gl साइन 60 जाएगा अंडर रूट 3/2 जी एल प्लस 2gl प्लस जी एल अंडर रूट ऑफ 3। सो जो यू आएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 3√3/2 प्लस 2 इंटू जी एल। ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इस केस में।